Hi, Parth. Hello. Welcome to you on Samvad episode 5 on behalf of Nurture International School. We often hear that success is not just about professional achievements but also about the life lessons, challenges and inspirations that shapes a person's journey. Today, we are privileged to have with us Dr. Manas Sarkar, a name that shines in the field of cybersecurity. So today we will go beyond the codes and the systems to know about the person behind the expert, his struggles, inspirations and philosophy of life. To begin with, sir, could you please tell us about your early journey? Yeah, am I audible? I think I use this one. Yeah, first of all, thank you everyone and thank you Nurture International School for inviting me for this Sambad. And let me clarify one thing, I am not a doctor, no issues. So I haven't done my PhD yet. And if you want to know about my early career and journey, how I have achieved these things. So, initially speaking, I was not a that much good student. I have started my career in cybersecurity. I have also worked in IIT, but during my HS and I mean plus 12, I was not a that much good student. So I have selected to go for a course which is actually can give me some thrill. That was the only thing I was thinking of, because I was not interested in a common or general course which is actually I want to see whatever thing I am doing that is visibly available. So that is only possible in computer and software development. So at that moment, I was more inclined towards software development. I have after HS, I have started my graduation in IT. So that was the moment when I feel that I have build up my interest into the computer science more and more, because the things are like whatever I am programming, that is visible in front of me, that this kind of command I am giving and it's showing this. But in other things I was also interested in maths and physics, but I couldn't feel that thrill in those subjects. It is actually dependent on everyone's own choice. So I couldn't feel that in other subjects, but I felt that computer is something which I can excel on. So that's how my career started. Sir, during your school years, were you always inclined towards computer and cyber systems, or did this passion develop later? During school time, I was not that much aware about computer, because those days were I am from actually a village area. So a small town in Assam known as Dalgaon. I am from that town, and computer was something which is at that time not that much accessible to us. I have seen first time in computer in my life in when I was in class 12. So at that moment I even don't know how to switch off the computer. I used to just वो होता है ना कि स्विच ऑफ कर दिया टीवी जैसा. सो जस्ट लाइक टीवी जैसे करते हैं ना, वैसा मैं स्विच ऑफ करता था. So those days were different because कंप्यूटर उस टाइम कंप्यूटर बहुत महंगा भी होता था. पर्सनल कंप्यूटर सबके पास होता नहीं था. सो लकीली वन ऑफ माय अंकल गिफ्टेड मी वन कंप्यूटर कि तुम एक्सप्लोर करो इसको. सो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं कहीं पे जाके उसको सीखूं, बिकॉज इन माय विलेज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट. सो मैं क्या किया, मैं कुछ दोस्तों को देखा था कि दे यूज्ड टू प्ले सम गेम्स. सो मैंने खुद एक्सप्लोर किया कि ये कैसे खेलते हैं. उस टाइम रोड रेज बोल के एक गेम आता था, बहुत पुराना गेम था. तो मैं खुद एक्सप्लोर किया कि इसको खेलते कैसे हैं. ऐसे करते करते फिर और इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगा. तो कुछ दोस्तों से मैंने बुक्स
बोरो किया उनसे करके, फिर आई स्टार्टेड लर्निंग, सेल्फ लर्निंग. Then after class 12 only, formal education में I came to the computer science. So this is the somehow like my own passion only, जो है कि मुझे इस एरिया पे लेके आया. Otherwise, if you talk about motivation, yes, my father was the person who actually used to motivate me about computer science, because उस टाइम आई कुड नॉट एक्चुअली रिकॉल द ईयर. एक इंसिडेंट हुआ था, सम रशियन गाइज हैक्ड इनटू आवर इंडियन कंप्यूटर सिस्टम ऑफ सम एटॉमिक पावर सिस्टम और समथिंग. सो दैट स्टोरी केम इनटू द like media, and my father told me about that. So slowly that story inspired me कि अच्छा ऐसा भी होता है. So my father was telling that कि देखो ये है ऐसे, some bad guys are doing this kind of things, so our India needs some good guys who can protect these things. So those words act like a motivation for me, so that when I started my graduation in computer science, I felt that line वो जो है ना, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलते रहता था. सो साइबर सिक्योरिटी का उस टाइम पे फॉर्मली हम लोग का कोर्स में या कहीं पे कुछ होता नहीं था. इट वाज ए डिफरेंट एरिया, एंड दोज डेज यूट्यूब वाज ऑल्सो नॉट दैट मच पॉपुलर. इंटरनेट मिलता नहीं था इतना इजीली. आई स्टिल रिमेंबर वी यूज्ड टू कैरी फ्लॉपी डिस्क, जिसमें कि 3.5 MB आई गेस स्टोरेज स्पेस होता था. सो वो ज़माना अलग ही था. उस टाइम इंटरनेट आप लोग को जैसे इतना आसानी से इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब में देखो सारा वीडियोस मिल जाता है लर्निंग के लिए. उस टाइम ये सब अवेलेबल नहीं होता था. सो इट वाज रियली हार्ड टू फाइंड द कोर्स कंटेंट से हट के कुछ आपको अगर सीखना है. वन थिंग वाज ओनली अवेलेबल, दैट इज़ आपको बुक पढ़ना है या कोई जर्नल्स पढ़ना है जहाँ पे उस टाइप का नॉलेज मिले. सो ग्रेजुअली वो जो दिमाग में चलता रहता था ना मेरा कि सिक्योरिटी कुछ करना है, उस चीज़ को लेके मैं अपने से कुछ चीज़ों को पढ़ने लगा. सो इन दैट वे I have entered into this cyber security area. What was that turning point or incident that made you realize cyber security was your calling? Turning point अगर बोला जाए, that I can see like during my graduation एक क्या होता था उस टाइम हम लोग को प्रोजेक्ट असाइन किया जाता था. सो एज आई वाज इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, मैंने क्या क्या कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया उसमें. सो उसमें लाइक ऑल ऑफ माय टीचर्स एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि हाउ यू डिड दिस. सो दैट ना वो मुझे एक थ्रिल आने लगा. मैंने पहले बोला था ना कि मुझे वो चीज़ में थ्रिल आता है जो दिखता है, हैंड्स ऑन जो है. तो वो मुझे आने लगा कि नहीं ये साइबर तो बहुत मज़ेदार है. ये तो मतलब वो तो दिमाग में चल ही रहा था कि सिक्योरिटी में कुछ करना है, और साथ में ये जो है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बाकी लोगों को नहीं पता है. लोग आर मतलब इंटरेस्टेड इन टू दिट, अदर पीपल आर ऑल्सो, इवन माई टीचर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टू दिस, दैट हाउ यू डिड दिस थिंग. सो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे लगा कि ये जो नॉलेज है ना, इसको अगर मैं गेन कर लूँ तो आई कैन अचीव समथिंग, बिकॉज इट इज़ यूनिक. उस टाइम बहुत कम लोग थे जो साइबर सिक्योरिटी पे स्टडी करते थे. स्पेसिफिकली इन माय रीजन इट वाज वेरी रेयर. सो वो जो इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ साथ मैंने फिर ग्रेजुएशन टाइम में मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स भी कुछ फाइंड आउट करने लगा कि क्या सीखा जाए. बट अगेन साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स तो था नहीं उतना अवेलेबल. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय बेसिक नॉलेज, जो कि एक
साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के पास होना चाहिए कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है, एक्चुअल में हम जो ईमेल भेजते हैं उसमें होता क्या है। अगर आपको हैक करना है ना तो आपको जानना तो पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि देन ओनली यू कैन टेक द एंट्री। आपको अगर गलतियाँ फाइंड आउट करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि इसका सही तरीका क्या है, और अगर इसको प्रोटेक्ट करना है तब जानना पड़ेगा इसमें गलतियाँ क्या है। सो वाइस वर्सा आपको दोनों जानना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है व्हेन यू हैव दैट जील टू लर्न द बेसिक थिंग्स कि ये काम कैसे करता है। सो इन ए वे like these are some points which actually changed my career from software development to cyber security, because my graduation was in IT, which is basically aligned to software development. Sir, you have over 14 years of experience in this field of information and cyber security. What inspired you to choose this domain, and how was your journey evolved over the years? Most of the things I have already mentioned. So, telling about how the journey worked. So, during my graduation, I was mostly into software development, but I started building my basics. After that, what I did, I was like a bit interested to start my own entrepreneurial venture. At that time, this startup concept was not there. It was mainly people used to say as entrepreneur. So फिर से मुझे थोड़ा सा उसमें मज़ा आने लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप करते अपने से कुछ करते हैं। तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक फर्म शुरू किया। लेकिन क्या हुआ उसमें ग्रेजुअली मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ज़्यादातर ना टेक्नोलॉजी से हटके मैं मार्केटिंग या प्रमोशंस वो सब में ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ बिज़नेस बिल्डअप के लिए, और मैं टेक्नोलॉजी से हटके दूर जा रहा हूँ। तो मुझे वो धीरे धीरे थोड़ा लगा नहीं, ये तो दिस इज़ नॉट माई एरिया। अगेन आई मूव टू टेक्निकल थिंग्स। मैंने एज ए इथिकल हैकिंग ट्रेनर एक जॉब ज्वाइन किया, माय फर्स्ट जॉब एज ए इथिकल हैकिंग ट्रेनर। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ माय प्रोफेशनल करियर। इथिकल हैकिंग ट्रेनर से फिर मैं सिस्टम एनालिस्ट बना, फिर वहाँ से जाके मैं गवर्नमेंट ऑफ असम में आया, फिर IIT, अभी रिसेंटली CII। सो दिस इज़ ग्रेजुअली मतलब मूव हो रहा है, बट द स्टार्टिंग वाज when I started that entrepreneurial journey, I felt that no, this is not my cup of tea. So I changed and I moved to the technical side, which is the area which always I find very interesting. Sir, having worked with both the government of Assam and IIT Kanpur, how would you describe the differences between handling cyber security in the public sector versus over the years? Very good question. See, not only private and government sector, in every sector there are different challenges. IIT कानपुर में जब मैं एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा था, आई हैव इंटरेक्टेड टू विथ मोस्टली 7 क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, इंडिया में NCIIPC बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई किया है। क्रिटिकल क्या हो गया, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस अगर साइबर अटैक हो जाए जिसमें then our country will suffer, people will suffer. So those kind of organizations को critical organizations notify किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब in that critical organizations there are 7 sectors. So one is power and energy, one is telecom, one is government, one is health. So in that way 7 sectors are there. So mostly I have worked with all these 7 sectors, and apart from that, specifically in government, I was involved for more than 5 years. So coming to the point, like
which sector is different or which sector is more critical, it is really hard to define, but there are some cultural differences. In government, things move a bit different way. There are bureaucratic hurdles are there are political hurdles are there, but in private sector things are very different. वहाँ पे फास्ट मूविंग है सारा चीज़ प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में सारा चीज़ फास्ट मूविंग है, डिसीजन चाहिए क्विक डिसीजंस होता है. बट इन गवर्नमेंट देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, स्पेसिफिक रूल्स एंड स्पेसिफिक processes that need to be followed for taking a single decision. Like I can, it's not actually I cannot share the exact incident, but just a brief idea I am giving. While my tenure in government of Assam, we have issued a guideline जिसमें ये था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हमें एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को नॉमिनेट करना है. अब जो स्ट्रक्चर था उसको अगर मुझे प्राइवेट में इम्प्लीमेंट करना होता, इट इज़ जस्ट एक मीटिंग चाहिए होता ऑर्गेनाइजेशन हेड के साथ, ही विल बी इशूइंग द ऑर्डर एंड इट्स डन, पीपल विल बी नॉमिनेटेड. बट इन गवर्नमेंट फॉर दैट आई हैव टू कंडक्ट एटलीस्ट 10 to 12 मीटिंग्स. आफ्टर दैट ऑल्सो इट टूक मोर देन 3 months टू गेट दैट परमिशन. So in a way, these are some challenges which actually depends on like the culture of the organization, be it government or be it private or be it any sector. If your culture is not right, if your administrative things are not proper, then everything will suffer. Because cyber security is not only technology, it's also about कि आप decision कैसे लेते हो. डिसीजन मेकिंग पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, बिकॉज आपको कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है. सो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. सर, बी ऑनेस्ट, बिटवीन गवर्नमेंट मीटिंग्स एंड रिसर्च डिस्कशंस, वेयर डू यू थिंक द वाईफाई वर्क्स बेटर? ऐसा है ना, जब आपका इम्पोर्टेंट काम होता है उसी दिन सारा चीज़ काम नहीं करता है. Be it Wi-Fi, be it Bluetooth, anything, any technology. कल मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, मैं अपना ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट करके प्रेजेंटेशन दे रहा था, अचानक बीच में मेरा वॉइस आना बंद हो गया. अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, उधर से बोल रहे हैं सर वी कैंट हियर यू. मैंने देखा मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है, मेरा उसमें चार्ज भी है, मुझे कुछ पता नहीं चला. एट लास्ट क्या हुआ, माई कलीग्स यूज टू टेक ओवर द प्रेजेंटेशन. सो ऐसा ही होता है जब वाईफाई भी सेम वे में आपका जिस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होगा ना, मान लीजिए कोई डिग्निटरी आ रहा है आपके वहाँ पे, दैट डे यू विल सफ़र. अब आई डोंट नो इट इज़ लाइक ये क्या है, ये डेस्टिनी है, ये क्या है, लक है, लेकिन ऐसा होता है. बट सेक्टर वाइज इन गवर्नमेंट सेक्टर वी डोंट फेस डिफ़िकल्टीज, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में सपोर्ट के लिए बहुत लोग रहते हैं. प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. लाइक इन बिगर ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट्स, उसमें इश्यूज ज़्यादातर कम होते हैं. इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर लिमिटेड मैन पावर, सो उसमें इश्यूज रहते हैं. अब नॉट ओनली वाईफाई, इन एनी टेक्नोलॉजी. सर, could you share some of the major challenges you faced in your career and how they helped shape your professional growth? Challenges that shape professional growth, it is really hard to define, because you see every step is a challenge. The main thing is that you need motivation for anything. अब आपको कुछ कोर्स अगर करना है, कुछ एक्स्ट्रा फ्रॉम योर जनरल करिकुलम, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट सम एक्स्ट्रा टाइम. आपको टारगेट रहता है ये कि मुझे मेरा फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, लेकिन आपको उसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और कोर्स, तो वो भी एक काइंड ऑफ चैलेंज ही हो गया. सो प्रोफेशनल ग्रोथ में ना दिस काइंड ऑफ स्मॉल चैलेंजेस आई विल से, बट इट मैटर्स अ लॉट.
क्योंकि उसमें ना आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ द थिंग, नो बॉडी विल गाइड यू कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे एक पॉइंट पे जाके ना। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा होता है कि देर इज़ नो वन हु कैन सजेस्ट यू, यू आर द ओनली पर्सन हु हैव टू चॉइस, टेक ए चॉइस आइदर दिस वे और दैट वे। व्हेन यू हैव taken that decision that I will do this thing, I will pursue this course or I will pursue this new technology, then you have to be motivated to complete that one. So वो मोटिवेशन जो रखना ना वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप एक बार आ जाते हो आपके पास, देखिए जब तक आप स्टूडेंट हो ना आपके पास एक डिफाइंड टाइम है कि मैं इस टाइम पे पढ़ाई करूँगा, इसके बाद में स्पोर्ट्स या जो भी एक्टिविटीज़ है। जब आप ग्रेजुअली बड़े हो जाओगे ना आपके पास और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं। तो विद इन योर लिमिट ऑफ दिस 24 आवर, कीपिंग ऑल दोज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रायोरिटीज़ इंटैक्ट एंड maintaining those motivation for learning new things, this is the challenge I think I have faced. And yes, like one more thing is like this technology field na, it is very fast. अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे, आप अपस्किल नहीं करोगे खुद को, then you will be nowhere, because the things which were relevant before 5 years is now outdated technology. So ये चैलेंज है कि खुद को आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं साइबर सिक्योरिटी सीख गया तो बस आई एम द हीरो ऑफ साइबर वर्ल्ड, वो नहीं होता है। जो भी टूल हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रोटोकॉल्स हो, आपने जो भी सीखा उसको हमेशा अपग्रेड रहना पड़ता है। स्पेसिफिकली इन साइबर सिक्योरिटी आई हैव सीन दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। इवन इफ़ यू डू सम सर्टिफिकेशन कोर्स ना, उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसमें आपका कुछ पॉइंट्स होते हैं, CPE पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एजुकेशन के लिए उसमें पॉइंट्स होते हैं। आफ्टर डूइंग द सर्टिफिकेशन यू हैव टू एक्वायर दोज पॉइंट्स ताकि वो सर्टिफिकेट आपका मेंटेन हो। उसके बाद उसका मेन रीज़न क्या है आपको पता है? वही आप आउटडेटेड ना हो जाए। तो वो सब चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। अब टाइम भी तो लिमिट है ना, 24 आवर्स ही है, उसके अंदर सब कुछ करना है। तो दैट इज़ द चैलेंज आई फेस्ड एंड दैट्स ऑल। Sir, as India is growing digitally, so are cyber threats. In your view, what are the biggest cyber security challenges our country faces today? इसका आंसर मैं दो टाइप से देना चाहूँगा। वन इज़ टारगेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड वन इज टारगेटिंग द मस पीपल। सो ऑर्गेनाइजेशन वाइड अगर चैलेंजेस हम देखें, सो देयर इज़ लाइक लैक ऑफ मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर। साइबर में अभी भी बहुत लोगों का ज़रूरत है। देयर आर वेरियस वैकेंसीज, पीपल, स्किल्ड पीपल मिलते नहीं है। पीपल तो मिल जाते हैं बट स्किल्ड पीपल मिलते नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक चैलेंज है कि उन लोग को स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इंजीनियर्स तो बहुत है बट स्पेसिफिकली आप जब इंटरव्यू लिया जाता है, वो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ज़्यादातर लोग ना क्या करते हैं, नॉट ऑल बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने पर ध्यान देते हैं। उससे आगे जाके सोचते नहीं कि मुझे और भी कुछ सीखना है, उससे आगे भी मुझे कुछ रेफरेंस लेना है, कुछ स्टडी करना है। तो इसके वजह से ना नॉलेज जो है एक लिमिटेड कैटेगरी में बुकिश नॉलेज होता है कि इतना ही था बुक में और मैंने इतना ही पढ़ा है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये मेरा क्लास में सिखाया नहीं था। एग्ज़ाम तो है नहीं, वो इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू में ज़्यादातर लोग ये चैलेंज फेस करते हैं। सो फॉर ऑर्गेनाइजेशन दिस स्किल्ड मैन पावर इज़ ए बिग इशू। एंड
एज ए होल अगर इंडिया का बात बोला जाए देन अवेयरनेस इज़ ए बिग चैलेंज. पीपल आर वेरी लेस अवेयर. जो ये मोस्टली फिशिंग अटैक होते हैं और ये बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, आपको पता है उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है ना ग्रीड. लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जिसके वजह से वो लोग वो बिछाए हुए जाल पे फंस जाते हैं. हैकर्स के, बैड एक्टर्स के बिछाए हुए जाल पे फंस जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रीड. सो जो अवेयरनेस है ना नॉर्मल जनरल पीपल के बीच में कि क्या करना है, किसको कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, ये फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फिशिंग मेल्स आते हैं, कैसे हैंडल करना है, वो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज एवरी डे लाइक पीपल आर लूजिंग मनी. जबकि पता है सबको कि ये हो सकता है, बट स्टिल क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. तो उसमें ना आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा मतलब यू कैन लाइक टेक ए चैलेंज ऑफ दैट एंड यू कैन डू वन थिंग कि आपका सराउंडिंग में जो भी है एजेड लोग जिनको मोबाइल्स या इंटरनेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, आप उनको बता सकते हैं. आपके सोसाइटी में अगर एजेड लोग हैं जिसको फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में पता नहीं, आप इंटरनेट से पढ़ के वो चीज़ यू कैन एडुकेट देम. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो हेल्प इंडिया टू बिकम ए डिजिटली सिक्योर कंट्री. Sir, you have played a vital role in Assam's cyber security policy and crisis management. Could you share what that experience was like and how important is to be prepared for that cyber threats? Yeah, in Government of Assam, actually, I was working as a CISO for Government of Assam, so I have to communicate with central agencies like NCIPC and SARTIN. These are the agencies who actually looks after the threat intelligence and post-incident activities. So उसमें क्या था, हम लोग को एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट डाटा सेंटर भी हम लोग देखते थे. सो स्टेट डाटा सेंटर में एंटायर स्टेट का जो गवर्नमेंट डाटा है वो रहता है. तो उसको सिक्योर करना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसमें पब्लिक डाटा है एंड क्रिटिकल है वो बहुत. उसके लिए हमें हमेशा सर्टिन या NCIPC से जो थ्रेट इंटेल आता है उस पर इमीडिएट एक्ट करना होता है कि these bad actors might do this kind of things, these are the new attack, these are the new techniques. So those kind of informations these central agencies used to send regularly. So every day उसका आता है और every day आपको वो फॉरवर्ड करके टेक्निकल पर्सन से वो चीज़ कराना पड़ता है. जो भी आपका नया अपडेट्स आया है सारा चीज़ रेगुलरली कराना पड़ता है. सो फॉर देट ना यू नीड सम प्रोसेस कि इफ़ समबडी इज़ नॉट प्रेजेंट, कोई टेक्निकल पर्सन या कोई आज जो ड्यूटी में नहीं आया, तो ऐसा ना हो कि उसके वजह से वो काम रुक जाए, बिकॉज सिक्योरिटी कैन नॉट वेट फॉर समवन. आपको वो तो करना ही है. सो वो प्रोसेस जो सेट करना ना वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि 24 आवर्स चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो, सिक्योरिटी पर्सनल्स उसके लिए अवेलेबल हो, और ये पॉलिसी या प्लान और SOP जो हम बनाते हैं उसको फॉलो करके ही चीज़ें हो. तो दैट इज़ अ चैलेंज बिकॉज लाइक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इन गवर्नमेंट देयर आर वेरियस अथॉरिटीज़. आपको सबका अप्रूवल लेके ही काम करना पड़ता है, एंड वो जो इमीडिएट एक्शन है ना दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग. And for ordinary people like us who sometimes forget passwords every other day, what simple habits can we follow to stay safe online? For like safety purpose, you want to know? Like see, there are a few common things
The most common attacks which we face is phishing and this fraud calls. So उसमें सबसे बड़ा चीज़ है ना, आपको अवेयरनेस चाहिए कि आप किसके साथ हैंडल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उससे भी बड़ा चीज़ आपको ग्रीडी नहीं होना है. मान लीजिए कोई आपको कॉल कर रहा है ना, करके बोल रहा है कि आपका एक अकाउंट था वो तो बंद हो गया है, उस पर मुझे रीसेट कराना है पासवर्ड. तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरा अकाउंट था ही नहीं, मैं क्यों उससे बात करूं. सो इस टाइप का ना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए, जो सबसे बड़ा ज़रूरी है. जो हैकर्स क्या करते हैं ना, वीक पॉइंट को टारगेट करते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो इजीली एक्सेसिबल होगा. अब इसको सोशल इंजीनियरिंग बोला जाता है. सोशल इंजीनियरिंग जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, लोगों के ब्रेन के साथ मैनिपुलेट करके बातें किया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि आजकल तो ये भी हो रहा है जो थ्रू दिस डीप फेक वॉइस क्लोनिंग भी हो जाता है. सो लाइक किसी का वॉइस क्लोन करके कॉल आता है कि मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, काइंडली मुझे आप इस नंबर पे पैसा भेजो. सो ये सब भी हो रहा है. लेकिन जो भी है ना, ये सब में एक चीज़ कॉमन है कि आपको आपका ना कॉमन सेंस यूज करना है. वो कोई आपको सिखा नहीं पाएगा. अब जैसे फिशिंग मेल्स होता है, फिशिंग मेल्स में आपको जनरली चेक करना होता है वो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, फिर दोज URLs में कुछ चेंजेस होते हैं. सो दीज आर वेरी माइनर थिंग्स. उसमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कुछ नहीं है जो आपको सीखना है, लेकिन वो है ना अवेयरनेस से होता है, वो कॉमन सेंस से होता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडवांस अटैक है, जैसे कि रैंसमवेयर हो गया या डॉस अटैक हो गया, वो जनरली कॉमन पीपल्स पर नहीं होते, वो ऑर्गेनाइजेशंस पर होते हैं. कॉमन पीपल्स पर मोस्टली ये फ्रॉड कॉल्स एंड फिशिंग ईमेल्स ये सभी अटैक होते हैं. तो उसके लिए अगर इतना कर लेंगे आप, दैट्स एनफ. Sir, speaking of passwords, do cybersecurity experts actually remember their all passwords, or you secretly click that forget password button? Very interesting question. See, this forgot password option is for everyone. And I don't know about others, but speaking about myself, अभी एक recent incident मैं बताता हूँ. There was some medical emergency and मुझे कुछ कैश का ज़रूरत था और मैं अपना ATM का पासवर्ड भूल चुका था, क्योंकि I was habituated of using this YONO cash. Being a SBI customer, I used to use this YONO ऐप. वहाँ पे बिना ATM का भी हो जाता है. सो उस दिन में मेरे साथ क्या हुआ, योनो ऐप मेरा काम नहीं कर रहा था और मुझे ATM यूज़ करना था. मुझे ATM का पासवर्ड बिल्कुल याद नहीं था. एट लास्ट मुझे अपना फ्रेंड को बुलाना पड़ा फॉर हेल्प. सो ये फॉरगॉट पासवर्ड ना सबके साथ होता है. Sir, how can ordinary citizens and students protect themselves from growing cyber threats such as phishing and identity thefts? Yeah, phishing I have already told, but this identity theft ना it's a bit challenging. उसमें क्या है, अब you cannot avoid using social media, you cannot avoid like giving your identity or Aadhaar card in some cases. The mostly in India, this Aadhaar card is most misused one. क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे ना, वहाँ पे आपको आधार का जेरोक्स मांगा जाता है. एक्चुअली हमें देना चाहिए मस्ट वन, लेकिन कोई सोचता नहीं है, सब लोग आधार का जेरोक्स दे देते हैं. अब हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, हाउ इट इज़ शेयर्ड, हमें कोई आइडिया नहीं. अब कोई होटल पे भी जाएंगे बुकिंग के लिए, वहाँ पे भी आपको आधार मांगेगा. आप सिम कार्ड लेंगे, आपको आधार मांगा जाएगा. सो ये आधार से भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट्स कैन बी डन. जस्ट एन एग्जाम्पल. सो देयर आर वेरियस थिंग्स. उसमें फॉर कॉमन पीपल मैं यही फिर से बोलूँगा कि यू शुड बी अवेयर कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं. देयर आर सम बेसिक टिप्स लाइक इन केस ऑफ शेयरिंग आधार, शेयर द मस्ट वन. फिर उसमें आधार में आपका एम आधार जो ऐप है उसमें जाके आप
फिंगरप्रिंट वगैरह ब्लॉक करके रख सकते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शंस के लिए आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आप उसको ब्लॉक करके रख सकते हैं। फिर आप जैसे मेल वगैरह में आप चेक कर सकते हैं लास्ट लॉगिन ऑप्शंस कहाँ से हुआ है। सो देयर आर सम वेरी कॉमन एंड बेसिक थिंग्स, दोज हाइजीन्स इफ यू फॉलो, I cannot say that you will be safe, but at least you will be in a better position. Sir, if you could hack into one's system for good reason, whose system would you choose? This is a tricky question. See, when we talk about hacking for a good reasons, nowadays it becomes VAPT. So, if you do, if you want to do hacking for good reasons, I will suggest to become a VAPT engineer and do this vulnerability assessment and penetration testing for the organizations who is actually authorizing you. But apart from that, if somebody is authorizing me that you can do anything and we will protect you, then obviously I will target our neighboring country. Lastly, what message would you like to give our student listeners who aspire to contribute towards making India digitally secure? To make India digitally secure, एक आइडिया जो अभी आप लोगों को बात करते हुए मेरे दिमाग में आया था ना, मैंने थोड़ी देर पहले शेयर भी किया था। इफ़ पॉसिबल आप लोग एक बार इसको थोड़ा सोच के देखिएगा कि आपके नाइबरिंग सोसाइटी में ना ऐसा बहुत लोग मिलेंगे जिसको डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, जिनको ये फिशिंग या फ्रॉड कॉल्स के बारे में पता नहीं है। सो जो बेसिक हाइजीन है ना, वो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए बातचीत के थ्रू, या 4-5 लोगों को एक साथ बैठा के आप उनको शेयर कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ किसी को, और उससे मदद भी होगा लोगों का। वो जो कोई एक मूवी में दिखाया था ना, सलमान खान का कोई मूवी में, कि 3 लोगों को हेल्प करो, सो वही वाला फार्मूला आप साइबर सिक्योरिटी के साथ करके देखो, मज़ा आएगा। Thank you so much, sir. Your valuable message truly wraps up our session today. We are deeply grateful to you for sharing your journey, your wisdom, and your insights into the world of cybersecurity. More importantly, thank you for inspiring us with the life lessons that go beyond textbooks. To our listeners, may we take these words as guidance, stay motivated, nurture compassion, and keep striving to shape not only successful careers but also meaningful lives. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now,